मैं 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੁਆਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾ 'ਚ ਭੇਜੋ। 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਆਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਰ ਨਾਰਮਲ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੁਆਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲੜਕੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪ੍ਰੋਫੈਟ ਬਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਦੇ ਪਾਸਟਰ ਮੀਨੂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਪਾਸਟਰ ਅਕਬਰ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਣੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਸੇਜ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹਾਂਜੀ ਕੌਣ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪੋਸਟਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦੀ ਕੁਆਇਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੇ ਹੈਂਡ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸੰਭਾਲਦੀ ਸੀ, ਟੈਸਟ ਮਨੀ ਵੀ ਸੰਭਾਲਦੀ ਸੀ ਤੇ ਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪਾਪਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆ ਰਿਪਲਾਈ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਪਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੁਝ ਲਿਸਟਾਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਸੀ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਗਲਤ ਮੈਸੇजेस ਆਣੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਓ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਕਰਨੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਏ। ਸਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੀ ਏਜ ਸਿਰਫ 16-17 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਮੈਸੇਜ ਆਣੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕਹਿਣਾ ਜੇ ਆ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦੇਣਾ, ਤੇਰੇ ਪਾਪਾ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਚਾਹਨੀ ਆ ਘਰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਮੈਂ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੌਰਚਰ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਸਰ ਕਾਲਜ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਪਿੱਛੇ ਗੱਡੀਆਂ ਲਾ ਦੇਣੀਆਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੱਕ। ਮੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣ ਤੱਕ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ। ਮੈਂ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੈਡ ਟੱਚ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸਰ ਬੈਡ ਟੱਚ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਤੋਂ ਆ ਕਹਿਣਾ ਜੇ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਤੇਰੀ ਮਦਰ ਬਾਹਰ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇਰੀ ਮਦਰ ਚਰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣੀ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਸੀ ਨਾ ਕੁਛ। ਮੇਰੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਚੱਲੀ, ਮੇਰੀ ਥੈਰੇਪੀ ਚੱਲੀ, ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਆ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੱਲ ਕੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਢਵਾਈਆਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸਟਰਸ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਧਮਕਾਉਣਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਤੰਗ ਆ ਗਈ ਸੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ। ਸਰ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਸਾਈਡ ਅਟੈਂਪਟ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਮੈਸੇजेस ਕਰਨੇ, ਬੈਡ ਟੱਚ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਸਰ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਟੌਰਚਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਚੱਕਣੇ, ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅੱਕ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਮੈਂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਧਮਕੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦੂੰਗਾ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਮੈਂ 2024 ਤੱਕ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹੀ। ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਚੀਜ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਸਰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਤੱਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਧਮਕੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜੇ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਦਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ
ससुराल गई जबलपुर मध्य प्रदेश। ਤੇ ਦੈਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਈ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਵਾਪਿਸ ਆਈ ਆਪਣੇ ਮਾਇਕੇ, ਆਪਣੇ ਕਪੂਰਥਲੇ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਕੋਲ। ਸਰ ਫਿਰ ਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਜਿੱਥੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਜਲੰਧਰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਭੇਜ ਕੇ ਰੋਕ ਕੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਗਲਤ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਸਰ ਮੇਰੀ 20 ਦਿਨ ਦੀ ਬੱਚੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਈ ਆ। ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਤਾ। ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੂੰਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੂੰਗਾ, ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਤੱਕ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸਟਰਸ ਘਰ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘਰ ਆ ਕੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪ ਮਰ ਜੂਗੀ, ਉਹਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਜੂਗਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਨਾਮੀ। ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਆਹੀ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ 7 ਸਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੂਗੀ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੂਗੀ ਜੋ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸਰ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਿ ਜੋ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਵੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚਰਚ ਕਹੀਏ, ਚਰਚ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਡੇਰਾ ਆ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਸਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੀ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਆ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਐਂਡ ਸਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਵਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਆ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਫ਼ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੇਰੀ ਪਾਕਟ 'ਚ ਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਰ ਲੂਗਾ, ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਮੇਰੇ 24 ਘੰਟੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਕੀ ਉਖਾੜ ਲੂੰਗੇ, ਕੀ ਕਰ ਲੂੰਗੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕੌਣ ਯਕੀਨ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਆ। ਸਰ ਮੈਂ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਕਪੂਰਥਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅੱਜ 9 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ FIR ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਸਰ ਮੈਂ ਆ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਐਕਸ਼ਨ ਚੱਕਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਆਹੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ। ਆ ਬੰਦਾ ਨਾ ਗਲਤ ਕਰਕੇ ਵੀ ਏਦਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਘੁੰਮਦਾ ਆ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਆ, ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਮਾਰਨ ਤੱਕ ਦੀਆਂ, ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਸਰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅਜੇ ਹੁਣੇ ਹੋਈ ਆ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਐਂਡ ਸਰ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਓ ਸਰ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲਾਂਬੜਾ ਥਾਣਾ ਆ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦ ਰੱਖਿਆ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਉਲਟੀਆਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਓਗੇ ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਵਾ ਦਾਂਗੇ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਜਦ ਕੱਲੀ ਰਹਿ ਗਈ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਕਿੰਨੇ ਦੇਣਾ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਥ ਸਰ ਮੇਰੇ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਫਾਦਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਂ ਨਾ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਫਾਦਰ ਕਹਿੰਨੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਮੇਰਾ ਸਪੋਰਟ 'ਚ ਉਤਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ। ਇੱਕ ਬ੍ਰਦਰ ਹੈਗੇ ਆ ਚੰਦਨ ਸੋਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ। ਸਰ ਜੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਆ ਸਰ, ਏਦਾਂ ਤੇ ਆਹੀ ਆ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਰਕੇ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆ ਕਿ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜਾਓ। ਸਰ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਜਦ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਣਾ, ਇੰਨੀ ਬਦਨਾਮੀ ਆ, ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਫੋਟੋ ਆ ਗਲਤ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਬਣਾ ਕੇ, ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਸਰ ਖੁਦ ਦੀਆਂ 2 ਬੇਟੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਸਰ ਮੇਰੀ ਆਹੀ ਮੰਗ ਆ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਸਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ। ਸਰ ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਵਾਇਆ ਆ, ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਈਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਪਿੱਛੇ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਵਾਪਿਸ ਲਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੇਚ ਆਣਾ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ ਆ। ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇਚ ਆਣਾ ਆ ਜਾ ਕੇ ਜੀਪੀ ਨਗਰ ਰੋਡ ਤੇ, ਜੀਪੀ ਨਗਰ। ਸਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਗਏ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਡੀਜੀਪੀ ਸਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ। ਮੇਰਾ ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਆਹੀ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਕਰੋ, ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਇਹਦੇ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਸਰ। ਸਾਫ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਵਾ ਦੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਕ ਲੈਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ पता आ कि अब किदा दा है, सारिਆਂ ਨੂੰ आही कहता है मैं मरवा दूंगा, क्योंकि सर ने बहुत बंदे मरवाए हैं। आज सारी मीडिया के सामने मैं इसलिए आया हूँ कि कुछ बातें सुनने को मिल रही हैं, कुछ अजीब सी। मैं आज तक मीडिया के सामने आता नहीं था, क्योंकि ना मेरा काम है कि विवाद करना या किसी के पे दोष लगाना। लेकिन मैं इन दिनों देख रहा हूँ कि कुछ लोग जो है भोलेपन का ज़्यादा ही फ़ायदा उठा रहे हैं। और अभी हमारी जो है ये जो आप देख रहे हैं पास्टर विजय, इसके साथ ये हमारे बारे में 5 साल से कुछ बदतमीजियाँ कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि ये मेरी जहाँ मैं रहता हूँ शुरू से, बचपन से, जहाँ मैं पला पड़ा बड़ा हुआ, वह वहीं का रहने वाला है। और ये पहले पास्टर बना, मैं बाद में बना, ये मेरे से चिढ़ने लग गया, जलने लग गया। प्रॉब्लम इसको ये है। और इसने क्या करना शुरू कर दिया, इसने मेरे बारे में उल्ट सुल्ट हर बार मीडिया पे अपना एक चैनल बना के कोई चैनल रजिस्टर्ड भी नहीं है इनका, और जो है इसने उल्टी सीधी बातें बोलना शुरू कर दिया। इसने कहा कि भाई ये जो है लड़कियां रखता है, ये जी कब्र खोद रखी है, ये खोद रखा है, वो खोद रखा है। हम पंजाब में लोगों को शिक्षा देते हैं नशे से आज़ाद हो। हम लोगों को बताते हैं कि भाई जो है तुम्हें परमेश्वर के सही मार्ग पर चलना है। आप बता दो कोई पर्चा मेरा पंजाब में किसी का झगड़े का हो, कोई पर्चा मेरा नशे का हो। इन्होंने ये देख लिया कि आजकल कानून जो है, वो कानून जो है इसका सहारा लेता है कि भाई लड़की पे बस थोड़ा सा पर्चा डाल दो और बस वो डर के मारे एसपी को और सच्चो को पार्टी बना लो, डरा दो और जाके पर्चा करा दो। ये देखो मैंने इस पे 119 का एफआईआर कराई, एफआईआर नंबर 119। आप इसको देख लो, बहुत सारे वो आपको दिखा रहे होंगे कि ये मेरे पास है, ये मेरे पास है, प्रूफ नहीं दिया, फोटो खींच लो सारे जने किसी कोई भी। 119 में इसे पर्चा कराया। और उसके बाद इसके ऊपर भगोड़ा है ये, इसके साथ जो इसका लड़का है चंदन, वो भगोड़ा है। अभी तक उसने जमानत नहीं कराई। और ये देखो ये यहाँ पे लड़की के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कर रहा है, तो आपको पता लग रहा होगा ये सिर्फ इसका स्कैंडल है, स्कीम बनाई है इन्होंने। और ये लड़का बैठा है, और ये जो इसका पति बैठा है लड़की का, ये जो है इसका स्पिरिचुअल सन है। ये इसके साथ चर्च में जाता है, इसने पास्टर बनाया, इसने सर्टिफिकेट दिया। तो अब ये पहले जो है लड़की हमारे चर्च में आती थी, तो अब इससे कोई पूछे कि इसका लड़का जो है इसने अपनी लड़की का जो ब्याह कराया जलंधर में कराया है, जिससे ब्याह कराया वो जलंधर में मेरे पास आते थे पहले यहाँ पर। मतलब अगर हम इन्हीं झूठ पे अगर आ गए तो उसका क्या फायदा। लेकिन पर यहाँ पर देखो इसने, ये आपको सोचने की बात है कि ये बंदा यहाँ भी बैठा है और यहाँ भी बैठा है, ये क्या करने के लिए आया है यहाँ पर। और इसके साथ जो इसका लड़का है वो अब तक फरार है। हमने जो है दरखास्त दी थी, ये देखो हमने दी थी 16 तारीख को, 16 तारीख को, इसमें डेट आ रही है। मैंने दरखास्त दी 16 तारीख को, इसका एफआईआर उसका ये डायरी नंबर लगा हुआ है। लेकिन इसने डायरी नंबर लगवाया 20 तारीख को। और उसके बाद इसने मंतगढ़ंत कहानियां बनाई। और देखो ये जो लड़का है चंदन, ये लड़का चंदन जो है, इस पे एफआईआर दर्ज है, ये भगोड़ा है। और ये भगोड़ा है। और यही लड़का, ये जो रोकी है, ये साथ में खड़ा है इसके, ये देखो ये उसके बाद पहले की है, पर्चा होने से पहले ये जाके उसके साथ मिलके खड़े हो गए। देखो ये लड़का यहाँ रोकी है बैठा है। मतलब इन सबका स्कैंडल है, ये इकट्ठे होकर मतलब बैठे हैं कि ये लड़का भाई तू हमें बता कि कैसे केस होगा, कैसे नहीं होगा। और ये चीजों में मतलब एफआईआर जो ये कर रहे हैं, उसके लिए अगर इनसे कोई पूछे, यहाँ पर हमारे क्या हुआ था कि मैं ना फोन रखता हूँ, ना कोई मैं किसी से मिलता हूँ। और मेरा काम है सिर्फ प्रार्थना करना। आप सब समझते हैं कि मैं संडे को यहाँ से मैं 2 बजे आता हूँ, और उसके बाद मुझे फटाफट स्टेज पे करना होता है। 5 बजे के मुझे दौड़ के फटाफट 8 बजे वहां पहुंचना होता है। मैं कितनी गाड़ी में संघर्ष करता हूँ जा जाके, और मेरे पास तो टाइम ही नहीं होता। तो ये जो है जो लांछन लगा रहे हैं, ये इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि 2-2.5 साल पहले कि ये चर्च में यहाँ पर वॉलंटियर क्वायर थे, इनकी मम्मी, और यहाँ पर 2 जने ठगी करते हुए पकड़े गए थे लोगों से। पैसा दे दो, ये दे दो, वो दे दो। तो जब इनकी शिकायत सामने आई तो हमने 1-2 बार इग्नोर करके हमारे प्रधानों ने, तो लेकिन इसको बायकॉट करने की बजाय इसको जो है हमने एक थाने में भी, हमने पहले वैसे भी इसको आगाह किया, लेकिन ये नहीं माने, तो थाने में हमने यहाँ पर इसकी डायरी नंबर लगवाया हुआ था
2-2.5 साल पहले पुरानी बात है, वहां पर दी थी। और इससे पूछो अगर इसके साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम थी, इसका सगा मामा यहाँ चर्च में आता है, सगा मामा। और जिस दिन इसने कंप्लेंट कराई उस दिन सगा सगा मामा यहाँ चर्च में था, और रहते ही ऐसे हैं, पास पास में इनका घर है सगे मामे का। तो ये क्या सगा मामा यहाँ क्या करने आता है इसका? तो जब मैंने वीडियो में दिखाया उसको अगले दिन लाइव में सगा मामा, तो उसके बाद उसका मामा उन्होंने वहां से हटा दिया, भाई इसका मामा आना नहीं चाहिए क्योंकि हमारी बेइज्जती हो जाएगी। ये कैसे? मतलब उसका मामा खुद कह रहा है कि भाई ये गलत ब्लेम लगा रही है। और दूसरी बात, कोई प्रूफ नहीं, कोई कुछ नहीं। आप देखो चर्च में कैमरे लगे हुए हैं। और अभी मेरा आने का मकसद यही है, सबके सामने आके भाई अभी मेरे बच्चे जो है परेशान हो रहे हैं। बच्चे कह रहे हैं, मैं भी तो 3 बच्चों का बाप हूँ, मेरी लड़की 14 साल की है, मैं ऐसा गंदा काम क्यों करूंगा? और जो है वो मेरी बेटी पूछ रही है, कह रही न्यूज में आ रहे हैं पापा ऐसे वैसे। तो लेकिन हम भी फैमिली वाले हैं हम ऐसे। लेकिन मेरा काम है सेवा करना, लोगों के लिए दुआ करना। मेरा काम ये नहीं है कि छेड़ा-छाड़ी। हम तो लोगों के साथ, मतलब हमारे साथ तो फेमस है, कोई भी फोटो खिंचा सकता है हमारे साथ, तो कोई फेमस है कोई। हम यहाँ तो फिल्म एक्टर आते हैं प्रार्थना कराने के लिए, कोई भी आता है। अब आप आए, आपको थोड़ी कहूंगा, लेकिन वो कहावत है ना, कुत्ता अपनी उल्टी करके खुद चाट लेता है। तो ये खुद फंस गया। ये देखो जो है अभी 16 तारीख को इसने जो ये 16 तारीख को ये कराया, और उससे पहले ये 16 तारीख को हमने डाला, 20 तारीख को जाके ये कंप्लेंट डाल रही है। और उसके बाद अभी जो है जितनी भी अभी हमने एफआईआर कराई है, ये जो रोकी लड़का है, ये जो इसके साथ बैठा है, दिखाओ जरा, ये जो रोकी लड़का है, ये इसके साथ सुनो, ये सेम है। देखो इस पे हमने आज से पहले पर्चा कराया था। ये देखो इसके साथ लड़ाई झगड़े का कईयों का पर्चा चल रहा है, सरबजीत इसका नाम है। और यहाँ पर ये हमारे ही बंदे ने कराया था, पूरी कॉपी है, रजिस्टर्ड है, ये आप ले सकते हैं, मैं दे दूंगा। लेकिन और हाँ, जसपाल ने कराया था। और यही एक मिनट, यही बंदा अब जो है इसने खुंदक निकालने के लिए इकट्ठे हो गए। देखो कितनी जल्दी ये यहाँ बैठ गया। इसी ने पहले पर्चे की एक रिपोर्ट दी थी। मतलब कि ये सब स्कैंडल है। तो अभी तो ये तो मानता ही नहीं है इस धर्म को। ये तो जो है दूसरे धर्म का है, और ये पास्टर है। ये इकट्ठे कैसे हो गए? इसका मतलब ये है कि हाँ भाई आ बैल मुझे मार, भाई तेरे पे भी वो प्रॉब्लम है, मेरे पे भी प्रॉब्लम है। मैं तो उस फैमिली को जानता नहीं। अब रही जो उसने वीडियो बनाई है, वो इसने हमारे प्रधान को फोन किया कि ऐसे ऐसे कि भाई तू, मैं वीडियो, इन्होंने क्या किया कि मीडिया तो अब पकड़ी है, थाने में तो रिपोर्ट अब कराई है। इन्होंने पहले ही विजय इमानुएल के चैनल पर, इसके चैनल पर, बाइबल फैक्ट चैनल पर इसने क्या किया हुआ है कि प्रोपगंडा रचा। इसने बिठा के इसको बताया, हाँ जी मुझे छेड़ा, मुझे ये मुझे वो। तो तू ही रहेगी छेड़ने के लिए। हम जो है परमेश्वर के जन है, तो हमारे पे इल्जाम लगा रही है। ऐसे तो यहाँ कितनी पब्लिक आती जाती है, कोई भी इल्जाम लगा देगा, कोई प्रूफ नहीं, कोई कुछ नहीं। और ये देखो अब इसने जो है जब इसकी वीडियो देखी हमारे प्रधान जी ने, तो इसने इसको फोन जरूर किया। इसने कहा कि भाई हम सच बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। इसने फोन किया कि भाई हमारे साथ भाई क्या प्रॉब्लम है सिस्टर, आप तो यहाँ आते थे और हमने कोई आपके ऊपर कोई ब्लेम लगाया, कोई पर्चा कराया, कुछ कराया, आप पीछे ठगे में पकड़े गए थे। तो इसने कहा कि देखो प्रधान जी, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ मेरी कोई भी गलत बात नहीं हैगी, ते मेरी तो बजिंदर सिंह नाल। उसने रिकॉर्डिंग में बोला मेरी मां मर गई है, मेरी सस मर गई है, भाई तुसी भाई शोक मनाने नहीं आए। तो ये शोक मनाने के लिए कहता कोई नहीं भैन मैं तेरे घर आऊंगा। उसकी रिकॉर्डिंग है, उसने बुलाया, इसने नहीं बुलाया। ये उसके घर गया शोक मनाने, और वहां जाके इसने बोला कि मैंने ऐसे ऐसे पर्चा कराना है, मैंने ऐसे ऐसे छोड़ना नहीं है। तो उसने कहा भाई तुम्हारी क्या बात है? कहते ठीक है तुम्हारी मर्जी। तो ये कह रही है कि अगर मैं मीडिया में ना हूं, तो इसने उस दिन इसके घर पे बोला कि भाई ये ना इसको बोलो कि भाई मैं या तो मुझे पैसे दे दे या फिर विजय मानवेल से फैसला कर दे। अगले दिन फोन करके उसकी भी रिकॉर्डिंग है, कह रही विजय मानवेल से फैसला कर ले। अरे तेरा क्या मतलब है फैसला करने का? हमारी लड़ाई इसके साथ है। इसका मतलब कि ये, और सुनो जो इसने बोला विजय ने कि भाई ऐसे मेरे बारे में ये वो वहां रखता है, ये नशे करता है, HIV है इसको, इसने अपने फैक्ट चैनल पे बोला। मैंने 5 करोड़ रुपए का, मैं कह रहा हूं कि मैं तेरे पर दावा, मैंने इसको बोला 5 करोड़ का दावा डालूंगा। फिर मैंने 50 लाख का दावा डाला, इसको कॉपी भेजी है, आप कॉपी देखना, इसके व्हाट्सएप पर कॉपी करवाई है वकील से। 50 लाख का दावा डाला, 1 लाख रुपया खर्च करके, कि मैं तेरे को दावा करता हूं कि तू मेरे को दिखा, प्रूफ कर कि मैंने कौन सा नशा करता हूं, कौन सा मेरा प्रधान नशा करता है, और कौन सी HIV है। मैं रिपोर्ट करा के बैठा हूं। मैं अभी दिखाऊंगा पूरी दुनिया को कि मेरे पे लांछन लगा रहा है, इसका मतलब बदनाम कर रहा है। क्या मतलब इसको, ये आपस में इसको क्या है कि एलर्जी है कि ये बढ़ गया, ये हुआ नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ कि देखो जिस DSP ने, हमने यहाँ दरखास्त दी थी,
मैं सीएम साहब से, प्रशासन से मांग करता हूं कि भाई ऐसे डीएसपी को बर्खास्त किया जाए। क्यों? क्योंकि भाई इसने जो है हमारे को गुमसुम कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि इसका साला, डीएसपी का साला दूसरे चर्च में जाता है और इसने उसको बता दिया, अब तक नहीं पकड़ा। मेरी तो दरखास्त 2.5 महीने की पहले एफआईआर नंबर तूने भगोड़ा कर रखा है, घूम रहा है वो, और तूने उसको पकड़ा नहीं, तूने उसको बता दिया। एफआईआर हमने लामड़े थाने में कराई है और तू उसको पकड़ नहीं रहा, और ये बंदा एफआईआर करा के इसके साथ बैठ के स्कैंडल कर रहा है इस लड़की के साथ। ये देखो, ये बैठा स्कैंडल कर रहा है। तेरी एफआईआर तो मेरे पास है, तू भगोड़ा है। और ये देखो, अगर हमने लड़ना हो या कुछ करना हो समाज में, तो हम भी कुछ कर सकते हैं। हमारे पास भी, मैंने कहा आप देखो शोभा यात्रा पर, जब मैं शोभा यात्रा निकालता हूँ, क्रिसमस करता हूँ, 10 लाख लोग आते हैं यहाँ पर। 3 घंटे लगते हैं लोगों को सिर्फ पैदल चलने में। 20 लाख लोग थे मेरी मीटिंग में झारखंड के अंदर। मैं जहां मीटिंग करता हूँ लाखों लोग आते हैं, ऐसे नहीं आते लोग यहाँ पर, अगर मैं ये काम करने लग जाऊं। लेकिन अगर मैं चाहूं तो 2 मिनट में चक्का जाम कर दूं। लेकिन मैं प्रशासन से विनती करता हूं इस बात के लिए, सीएम साहब से, कि भाई जब इलेक्शन होता है, वोट लेने आए तो तब तो ठीक है, लेकिन अभी ये इतने बड़े बड़े पास्टरों में भी तुम पर्चा डाल रहे हो। अभी जो है वहां देखो ना, वो एक पास्टर पे, उस पे भी पर्चा डाल दिया गैंगरेप का। 5 पास्टरों पे डाल दिया इकट्ठा, चाहे कोई हो, चाहे इनकी आपस में लड़ाई हो, चाहे कुछ हो। लेकिन ये थोड़ी है कि हम आपस में जो है ऐसे काम करने लगेंगे। मैं तो, मुझे तो शर्म आती है कि बिशप साहब इस पे कहते हुए कि ये जो है अपने आप को कहता है, कभी कहता मैं स्पिरिचुअल फादर हूँ तेरा, कभी कहता मैं बाप हूँ तेरा। लेकिन अगर तेरा सगा बेटा है, उस पर पर्चा करा के दिखा ना लड़की का, उस पे कर ब्लेम लगा जाके। और आज अब कहेगा कि तुझे क्यों चीड़ हो रही है? तुझे उस दिन चीड़ हुई क्योंकि तूने जो है, मैं बेखड़ंत 5 साल से तेरी वीडियो देख रहा हूँ, 5 साल से तू बोल ही जा रहा है। लेकिन मैं ऐसा भी भोला नहीं हूं कि मैं चुपचाप बैठा रहूंगा। पहला था तो पर्चे करा लिए थे यहाँ पर पंजाब में आके, लेकिन अब मैं भोला नहीं हूँ। बाइबल बोलती है भोला दुख उठाता है और चतुर निकल जाता है, तो मेरे को भी चतुराई आती है। अब अगर जैसे मेरे को किसी ने सही सलाह दी थी, कह रहा पागल जब सांड हो जाता है ना, उसको डंडा मारा जाता है, पुचकारा नहीं जाता। तो ये पागल हो गया, इसको पुचकारने में मेरे को कोई फायदा नहीं है। मतलब कि मेरे अगर जैसी चोट मारेगा, बाइबल में लिखा परमेश्वर का काम परमेश्वर को दो, सरकार का सरकार को दो। तो मैं सरकार को देने आया हूँ, परमेश्वर का काम मैं संडे को करता ही हूँ, लेकिन मैं सरकार को देने आया हूँ। मैं बताने के लिए आया हूँ कि मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं यार, तुम क्या ऐसी छोटी छोटी गंदी गंदी बातें ब्लेम लगा रहा है। लेकिन और वो तो ऊपर वाला देख रहा है कि न्याय करेगा। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आपके चैनल के जरिए, कि आपके चैनल को भी परमेश्वर आशीष दे। देखो, मेरी अगर कहीं भी कोई कह रहा हो, मैं डेफिनेशन का चैनल वालों पे, दिल्ली से लेके बॉम्बे तक, और चाहे कर्नाटक हो चाहे पंजाब हो, सब चैनल पे केस डालूंगा। डेफिनेशन का एक भी साबित करके दिखा दे। जो कहता नशे करता है, मर्डर किया हुआ, मैं 5 लाख रुपए का केस डालूंगा, 50 लाख का डालूंगा, कहीं से भी डालूंगा। मेरे खिलाफ दिल्ली में भी न्यूज चलाई उन्होंने, मैंने उनके ऊपर भी, मैंने सिर्फ जो है एक बंदा मेरे साथ था, फिर भी चलो मैंने उनको पास्टर जी के कहने पे मैंने नहीं किया। लेकिन अगर जो कोई कर रहा है, अगर बेमड़ंत कड़ंत की कहानियां बना रहा है, फलाना फलाना ये करते हैं वो करते हैं, कहते चिट्टा बेचते हैं, अरे हम तो लोगों को नशे से आजाद कराते हैं, हमारे खिलाफ बोल रहा है। अगर जो है अभी मैं उन, देखो न्यूज वाले से हमारी कोई खुंदक थोड़ी है, वो भी हमारे भाई बहन है, वो हम भी ऐसे ही दुखी लोग थे। हम प्रार्थना करने आए, परमेश्वर ने हमारे जीवन में काम किया, तो आज हम प्रभु में आ गए। लेकिन ये नहीं है कि स्ट्रेटेजी ना बनाओ उसको, जब इलेक्शन आने वाले हैं स्ट्रेटेजी ना बनाओ। अब पूछते हैं तो बोलते हैं कि जी हमारे पे तो कोर्ट से उन्होंने पार्टी बना लिया, हमें एसएचओ को और डीएसपी को पार्टी बना के, उनका भी कसूर नहीं है, उनको पार्टी बना लिया, वो डर गए बेचारे, उनको उन पर्चा कर दिया। वो हाथ जोड़ रहे हैं, वो कहते हैं जी हमारे पास जो भी होगा, तो हमें कहते हैं भी अपनी वो दे दो। तो देखो अब मैं यहाँ क्यों बैठा हूँ, मैं अगर होता तो भाग जाता, चोर होता मैं आपके सामने क्यों बुलाया आपको? मैंने इसलिए बुलाया है, मेरे पास लाखों लोग, आप यहीं से चेक कर लेना, जब आप मेरी वीडियो डालोगे कितने लोग आपकी वीडियो देखेंगे। आपको मैं यहीं से बता रहा हूँ, लोग प्यार करते हैं नहीं करते, लेकिन हर तरह 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। अगर जो कोई कुछ भी कह रहा है, तो मैं तो इसलिए आया हूँ कि भाई मेरे भी बच्चे हैं यार, ऐसे क्यों बदनाम कर रहे हो? लेकिन अगर जो कोई प्रूफ है तुम्हारे पास तो ठीक है, मैं यहाँ बैठा हूँ, मुझे बुला लो थाने में, मैं तो बैठ जाऊंगा, मैं तो बाहर बैठूंगा। आप कुछ कहना चाहते हो तो बताओ। सर, उसमें उन्होंने बोला है, कुछ चैट का जिक्र कर रहे हैं, उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? देखो, आजकल नकलियां चैट बनती हैं। चैट सरदार जी मैं आपकी भी बना सकता हूँ, नकली चैट, एप्पल के फोन आपको पता है, चैट जो कहोगे वो बन जाएगी। आजकल सब चीजें तेज हो गई हैं, आपकी आवाज भी लग जाएगी। मेरे को ये बताओ कि भाई आप दिखाओ मेरे को कोई प्रूफ, और कोई प्रूफ दिखाओ। इसको तो आरोप लगाए हैं उसके बारे में आप कहना कि वो बेबुनियाद। देखो, जो आरोप लगाए हैं मेरे ऊपर वो बिल्कुल बेबुनियाद है, उसमें कोई भी दम नहीं है। ये सब जो है मड़ंत गड़ंत षड्यंत्र रचा गया, बेबुनियाद कहानी है और कुछ नहीं। अच्छा, आपके साथ इन्होंने आरोप अवतार जी को लेकर भी लगाए हैं और भी लोगों पर लगाए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी है, और जो एफआईआर दर्ज हुई है उसके बयानों पे भी लिखा हुआ है कि कह रहे कि वो पहले जब
अंडर एज थी, तब वो यहाँ पर आई, काम किया उसने। उसके बाद उसने कहा कि मेरे से छेड़खानी हुई, फिर मेरे को लेके गए, फिर मेरे को धमकाया, रास्ते में कॉलेज जाते थे तो धमकाते थे, मेरे परिवार को जान से मारने की धमकी देते, शादी करने के लिए दबाव बनाया गया। अच्छा एक बात सुनो कि अगर वो कहे ऐसे कि भाई जो है कॉलेज जाते थे, पीछे आते थे, कोई तो कैमरा होगा यार, कोई तो बंदा होगा। 2.5 साल में अभी तक वो बिल्कुल भी नहीं आया। आप देखो कि यहाँ पर सारे चर्च को पता है कि उसको फिट्स पड़ते थे, दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम थी। तो यहाँ पर लोग जो दुष्ट आत्मा के लिए प्रेयर कराने आते हैं, भाई निकल जाए, मैं ठीक हो जाऊं, हमारा काम प्रेयर करना है। और हमारे लिए कोई भी नहीं, हमारी वो बेटी जैसी है, और वो हमारे मतलब पूरी फैमिली, वो बहन बन के रहती थी इनके साथ, उसकी माँ। हमारा तो कोई किसी के साथ है ही नहीं। लेकिन ये देखो लड़ते आपस में बाहर वॉलंटियर, और ये सारा गुस्सा भड़ास उस पर निकाल। आपके दुकान पे कोई काम कर रहा है, पर्चा किस पे होगा? मालक पे होगा। बस आपको इतनी सी बात। सर जो आप कह रहे हो कि आप पैसे की मांग की गई है, वो वो कितने पैसे की मांग की गई और किसने मतलब नहीं, उन्होंने प्रधान जी के घर पे, प्रधान जी जब उसके घर पे गए तो इनके साथ बातचीत हुआ, मेरे साथ। कितने प्रधान के साथ सर कितने पैसे मांगे? नहीं, मैंने इनसे कोई बात नहीं किया, ना मेरी फोन पे बात हुआ। मैं तो उस दिन से अब इनको अच्छा, आपने एक एफआईआर का जिक्र किया है जिसमें विजय है शायद, है ना, वो कहते हैं कि जो हमें जानकारी मिली है कि उसकी जो उसने जमानत करवा ली वो पेश हुआ था, शामिल तफ्तीश हुआ था। क्या ऐसा कुछ आपको जानकारी है या नहीं उसमें? हाँ, तो एफआईआर हमारे प्रधान जी ने कराई है, अवतार जी ने कराई है ना। तो लेकिन अभी मुझे उसका नॉलेज नहीं है कि वो उसने क्या कराया। मैं तो उसको खुद कह रहा हूँ भगोड़ा भगोड़ा भगोड़ा। अभी देखो हमें जानकारी मिली थी, अभी बाहर ही पता चला था कि उसने जमानत करवा ली, एक ने, चंदन ने नहीं। हाँ, तो भगोड़ा है ना। तो अभी मैं यही तो बात कह रहा हूँ कि ये 2.5 महीने से ये एफआईआर है, मैं डीएसपी के पास बंदे भेज रहा हूँ कि इसको क्यों नहीं पकड़ रहा। बाद में पता लगता है कि अब इसका साला इसको फोन करता है, या कौन करता है मुझे नहीं पता भाई किसके साथ। लेकिन पर अब ये देखो कि भाई अब ये जो चीजें हैं, मैं 2.5 महीने से मांग कर रहा हूँ, मेरी तो सुनवाई नहीं कर रहा। अब इन्होंने देखा कि हमारे पे पर्चा कर दिया, तो आप खुद समझदार हो कि ये देखो ना क्यों बैठ गया यहाँ पे। इसके अब क्या खुंदक निकाल रहा है? क्या लगता है ऐसा क्यों हो रहा है? एक महिला ऐसे गंभीर आरोप लगाएगी, अब उसने ये भी आरोप लगा दिया कि कहती मैं प्रेग्नेंट थी तब भी यहाँ पर रहने आई क्योंकि एमपी में उसकी शादी हुई। अब कह रही 20 दिन की बच्ची है, लेकिन मेरे को फिर भी डर डर के रहना पड़ रहा है। मतलब खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद आरोप लगा रही है। देखो खुली में भाई साहब, जो शर्मसार इंसान होता ना वो ऐसे नहीं आता। जिसके अब मैं किसी के बारे में कहूंगा नहीं, मैं क्यों कहूँ किसी के बारे में क्या करना है। लेकिन मेरा तो कहने का मकसद सिर्फ यही है कि भाई जो है सब प्रोपगंडा रचा जा रहा है। डीएसपी का नाम क्या है जो आप कह रहे हैं कि इसके कहने पे? डीएसपी का क्या नाम है जिसका आप कह रहे हो कि? मैं लांबड़े की बात कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता। मुझे इतना पता लगा था वो कहीं विजय के साथ मिला हुआ है। डीएसपी भुजिंदर जी, जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस में इल्जाम लगाए गए, लड़की द्वारा कहा कि जो चर्च में टेस्टिमनी होती है वो बिल्कुल फेक होती है, लाइट ऑन कर, उस चीज को आप कैसे देखते हैं? क्या होती है? टेस्टिमनी जितनी भी होती है वो सारी फेक होती है, सबको स्क्रिप्टेड किया जाता है। देखो दो व्यक्ति हैं, नाम उन्होंने लिया, लेकिन मेरा सवाल सुनिए। नाम लिया उन्होंने, नाम लेके बताया एक लड़की। देखो मैं यहाँ ना उस बात के लिए नहीं बैठा, मैं यहाँ पे अपनी सफाई देने के लिए आया हूँ आपके पास। सुनो सवाल उसको सुनो, सवाल का जवाब भी दे देता हूँ, लेकिन ये आगे से ध्यान रखो। आपने जिस बात के लिए उसी पे टॉपिक पे रहो। सुनो वो जो मर्जी उसने लिखा हो, लेकिन पर देखो अभी मैं बता देता हूँ, सबकी आस्था होती है बेटे, सबकी आस्था है। कोई भी कहीं भी जाता है वो विश्वास कर, जो चंगा हो जाता है वो ठीक कहेगा, जो चंगा नहीं होगा वो बाद में गालियां देगा। तो ये फर्क है, मतलब उसका आस्था का फर्क है ना, विश्वास नहीं। हाँ, किसकी बात कर रहे हो मुझे पता। जिस लड़की ने इल्जाम लगाया, कौन सी लड़की ने? जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एफआईआर करवाई है, जिस लड़की के आरोपों पर आप सफाई नहीं, वो तो सुनो उसने तो ये कहा था कि भाई ये जिन लेके आता है, ये तो इसके तो शैतानी बाइबल है। आप पता है इस बात पे उस पे कंप्लेंट हो सकती है। हमारे धर्म पुस्तक को जो है ये शैतानी बोल रही है, तो क्या मतलब उसका बोलने का वर्डिंग देखो ना उसकी। तो ये अब ये लास्ट यही है कि वो जो आरोप लगा रही है वो एक तो आपके साथ कोई रंजिश है, उसकी पुरानी रंजिश को लेके लगा रही है, यही आपके आरोप है ना फिलहाल। तो ये देखो उसने नहीं आपको बताता हूँ, ये पुरानी रंजिश का हम नहीं जानते। हमारे लिए तो सब बराबर थे, हमारे से किसी से रंजिश नहीं। ये जो प्रॉब्लम हुई है मैं बता दी आपको। दोबारा दिखा फोटो। वो ये जो आदमी है, ये जो पोस्टर है आदमी है, दिखाना।
पोस्टर देना, आप रजिस्टर कर दीजिए रुक जा एक मिनट, रुक जा, क्योंकि फाइनल कर देना, क्योंकि फाइनल कर दो। पास हाँ समय नहीं है। नहीं ठीक है। देखो अभी जो ये आदमी है, नीचे से उठा इसे, इसके नीचे है। नहीं, वो देखते हैं। देखो ये नहीं है यार, सर इसके नीचे ही है, आपके पास ये इसके नीचे, इसके नीचे। अच्छा ये रहा। अभी देखो ये जो आदमी, आपने क्या क्वेश्चन किया था? सर नाम क्या है इसका? सुनो, विजय, विजय। तो देखो ये जो आदमी है, इसने हाँ, ये जो आप कह रहे थे ना खुंदक तो नहीं है, हमारी कोई खुंदक नहीं किसी से। मेरी तो आज तक, मैं पूछ लो किसी थाने में मैंने किसी की कंप्लेंट भी दी हो, मेरे को तो लोग वैसे ही कह सकते हैं कि कोई पंजाब में प्रॉफिट बजिंदर ने किसी की कंप्लेंट करी हो, या प्रॉफिट बजिंदर पुलपिट पे आके किसी और पास्टर की तरह चूं पू किसी का बदनाम किया हो, कोई किसी भी धर्म को बदनाम किया हो। मैंने आज तक किसी को जवाब नहीं दिया, मेरा राइट नहीं बनता जवाब देना। देखो अभी मैं इसलिए आया क्योंकि ये आदमी, अभी हमारी खुंदक तो 2 साल 2.5 साल पहले तू कहाँ थी, लेकिन अब जब इसका पति ये चंडीगढ़ में रहता है और इसके चर्च में जाता है और इसके साथ सेवा करता है, और इसने पास्टर सर्टिफिकेट दिया है, और अभी मैं आपको फोटो दिखाऊंगा इसकी, क्योंकि अभी आपने लगा दिया ना तो वो डिलीट कर देगा। अभी इनके फेसबुक पे पड़ी हुई है, अभी निकाल के दिलवाऊंगा, थोड़ी देर अगर ना डालो तो। इसने इसकी मीटिंग कराई ये केस करने से पहले एमपी में हीलिंग क्रूसेड। अब आगे वह बताओ, जब इनकी इतनी बनती है तो ये क्या कराएंगे? तो इसका मतलब ये प्रोपगंडा है, साजिश है। आप समझ गए? कहने का मतलब ये है सरकार ने वोट आपसे ली, हाँ फायदा इनको दे रहे हैं आपके खिलाफ। हाँ, कोई नहीं, अगले रिजल्ट में हम भी। अच्छा ये बता सर आप जो कह रहे हैं सर, यूट्यूब आपके- चैनल ये चला रहे हैं आपके खिलाफ, ऐसे अश्लील फोटो कर रहे हैं, तो आपने उसके बारे में कंप्लेंट वगैरह दी है? वो तो हैगी है कि वो क्या- अच्छा सर ये बता दीजिए, दोबारा बोलो। जो यूट्यूब चैनल ये चला रहे हैं आपके बारे में अश्लील फोटो वायरल कर लाए। भाई साहब मैंने ना 3 थानों में कंप्लेंट दी हुई है, एसएसपी मोहाली और साइबर क्राइम में, और मैंने बकायदा जो इन्होंने चलाई है उसकी मैं आपको कॉपी दूंगा। अगर मैं झूठा हूं तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने आता। मैंने 50 लाख रुपए का दावा डाला। अच्छा सर एक चीज बता दीजिए, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਠੱਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੱਗੀ ਕਰਦੇ ਵੀ ਪੜ ਗਏ ਸੀ, ਇਹ ਠੱਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ? ਲੜਕੀ ਦੀ ਮਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ तीसरा? और पूरी इस लड़की की माँ, और क्योंकि वो साथ में थे ना तो पता लग जाता। तब ज्यादा हम इन बातों में किसी पे दोष नहीं लगाते। जब हम चाहते हैं, हम तुम्हारा काम है, प्रभु यीशु मसीह बोलता है माफ कर दो, कि गाल पे थप्पड़ मारे दूसरे फिर दो, लेकिन अब तीसरा कहाँ से लाऊं? इसलिए तो यहाँ आ गया। एक सेकंड सर आखिरी सवाल, सर आखिरी सवाल मेरा, आपकी तरफ से पहले एफआईआर दर्ज करवाई गई विजय के खिलाफ, ठीक है, अब आपके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई, अवतार जी के भी। तो अगर आपको लग रहा है कि इंक्वायरी सही नहीं होती, क्या आप कोर्ट का रुख करेंगे? नहीं, मैं कोर्ट का रुख क्यों करूंगा? मैंने तो कोई गुनाह ही नहीं किया। मैं तो पुलिस प्रशासन के बाहर बैठूंगा, मेरे प्रूफ दिखा, प्रूफ दिखा। मैं तो प्रशासन से, सीएम से मांग कर रहा हूं। मैं तो तुम जाओ, तुम्हें अगर कोई एफआईआर तो तब होती है ना, मतलब क्या एफआईआर करने का? मैं तो उनके पास जाऊंगा, मांग करूंगा कि भाई इसको कैंसिल करो। मैं क्यों जाऊंगा कोर्ट में? अगर नहीं होती कैंसिल? बिल्कुल सबका लास्ट क्वेश्चन, एक आप जैसे बोल रहे हैं कि चैट वाले जो प्रूफ है वो तो क्रिएट किए जा सकते हैं, तो आप बोल रहे हैं उसके अलावा कोई प्रूफ दिखाओ। आप कैसा प्रूफ मतलब समझते हैं कि ऑथेंटिक होगा? यार वो तो तुम्हें पता है, तुम डॉक्टर हो इस माहिर के, मैं थोड़ी डॉक्टर हूँ। मैं तो परमेश्वर का दास हूँ, ये बातें मुझे शोभा नहीं देती।